Hello everyone, this is C.S. Sharma. I'm Head of Department Physics in Reliable Institute. I'm a graduate from IIT Bombay and teaching in Kota City for last 16 years. So I'm studying on the most important chapter of physics, which is Newton's laws of motion. This chapter is not only important for mechanics, not only important from JEE Advanced, JEE Mains aspects, but also very important chapter for your life. Somebody has truly said that physics is the language of nature. So, if you want to understand that nature, whatever is happening around you, what is the cause of that happening, if you have to understand Newton's laws of motion first. So, this chapter is part of classical mechanics, and in this part, actually, you are going to discuss about the cause of motion and why motion is happening. As you know, that mechanics is divided in two different parts. Let's say this fellow is moving on a bicycle, and one aspect of analyzing the motion is kinematics, which means without knowing the cause of motion, whatever is happening, we are not concerned with the cause of motion. We are just calculating the velocity, acceleration, displacement, etc. etc. But why this acceleration is coming, which force is provided that acceleration, this particular things comes into picture in kinematics. And this cause is related with inertia. Inertia means opposition capacity to oppose a change in motion. There are three types of inertia which you are going to discuss in this chapter. One is simple inertia, which is related with the mass capacity to oppose the change in translational motion. The other is moment of inertia, capacity to oppose change in rotational motion. And the last one is electrical inertia, which is also known as self-inductance, capacity to oppose change in flux. So this all history started way back in 384, 322, when Aristotle gave an idea that anything which is moving because a force is making it move. So if something is moving with constant velocity, according to Aristotle, there is a force which is applied on the body and which is making that body to move with constant velocity, which is exactly opposite of Newton's laws of motion. So after many years, I think hundreds of years, Galileo gave a concept of inertia. Galileo explained that when a body is moving and if there is no external force on the body, it will continue to move with constant velocity. As you can see in the diagram, there are two inclined planes in the first diagram, uppermost diagram. When the ball is coming down, gravity is accelerating that body, so speed is increasing. But when the body is moving on horizontal surface, there is no external force on the body, which means that velocity of the body will remain constant. When the body is moving on the another incline, the body is deaccelerated, so its speed is going down. Galileo also explained that if the body is having an inertia, which means it will oppose the change of motion. So the same concept was carried by Newton, and basically Galileo laid a foundation for Newtonian mechanics, which later on carried by Newton. And Newton developed three important principles, three important rules based on these studies. So in this chapter, we are going to discuss about those important rules, how those rules can be applied in our mechanics part, in our life, why things are happening, why the apple is coming down. Now we all know about it, that gravity is pulling that object. But in this chapter, we are going to discuss about the cause of motion, why something is moving, why an object is accelerated, if an object is in equilibrium, what are the forces which are keeping it in equilibrium? If an object is accelerated, which force is making
it accelerated and how much is the acceleration. So we are going to discuss about all these aspects which are important for all other chapters which are coming in future. So good luck, stay with me, enjoy the chapter. फाइनली बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि किस तरह से कई सालों में, कई सौ सालों में जो एक मिथ्या, जिसको कह सकते हैं फैलेसी, एक गलत जो स्टेटमेंट एरिस्टोटल साहब ने दिया। हालांकि एरिस्टोटल जो है, उनके बहुत सारे दूसरे अचीवमेंट्स हैं। उन्होंने हमारी एक तरह से कह सकते हो साइंस की फील्ड में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जिनको हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। ही वॉज अ फिलोसफर। और उसके बाद गैलीलियो ने उसको करेक्ट किया कई बरसों के बाद, और उसके तुरंत बाद न्यूटन ने रूल्स दिए। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो डिस्कशन है, ये सारा डिस्कशन घूम रहा है एक सिंगल वर्ड के अबाउट, एंड दैट वर्ड इज फोर्स। सो बचपन से लेकर अभी तक हम लोगों ने फोर्स की कई तरह की डेफिनेशन पढ़ी होती है, और हम ये जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही है वो सब फोर्स की वजह से घटित हो रही है। जैसे कि मैं इस समय फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। वन इज नॉर्मल रिएक्शन विच इज अप्लाइड बाय ग्राउंड, विच इज अप्लाइड बाय सरफेस ऑन मी, एंड अदर इज ग्रेविटी. So when I'm standing and doing nothing, which means that forces are balanced. When I'm accelerated, which means that forces are not balanced. तो जो फोर्स है ना, उसकी सब अलग अलग अपने हिसाब से परिभाषा देते हैं, लेकिन उन सारी परिभाषाओं का जो सार है वो एक ही है कि फोर्स इज अ पुल और पुश विच कैन। अब क्या क्या कर सकता है वो अपने को लिखना है, ठीक है। तो फोर्स से हम स्टार्ट करते हैं। यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन ए change the state of motion which can change the speed. अब एक्चुअली इसमें क्या है कि जो स्टेट ऑफ मोशन है ना, मैं कह सकता हूं कि इसमें ये दोनों चीजें आ गई, स्पीड और डायरेक्शन और बोथ। तो कई बार हम लोग उनको अलग अलग करके लिख देते हैं, लेकिन when you are saying state of motion, which means either you change direction or you change magnitude of velocity or you change both, सब आ गया इसके अंदर। Okay, so whenever state of motion is changed, it means force is being applied on it. अब इसमें हम इसको सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि अगर कोई चीज रुकी हुई है और वो चलना स्टार्ट कर देती है, इसका मतलब उस पर फोर्स लगा है। कोई चीज चल रही है, वो रुक जाती है, इसका मतलब उस पर फोर्स लगा है। न्यूटन्स लॉ में फिर हम उसको डिटेल में एक बार और लिखेंगे। तो एक तो ये विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, इनमें से कोई एक या कोई दो या तीनों, मतलब या दोनों, इनमें से कोई एक या फिर दो। दूसरी चीज, इट कैन डिफॉर्म ऑब्जेक्ट। कई बार क्या होता है, फोर्स लग रहा होता है, ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा होता, लेकिन वो डिफॉर्म हो रहा होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि उसमें भी फोर्स लग रहा है। अब देखो बच्चों, फोर्स एक पुल और पुश है। हंसी मजाक की बात है, कई बार मैं बच्चों को बोलता हूँ जो कोटा पढ़ने के लिए आते हैं, 11th में आईआईटी एडवांस की तैयारी करने के लिए आते हैं, आईआईटी में जाने के लिए भी पुश और पुल चाहिए होता है। कई बार वो अपने अंदर से मिलता है, कई बार पेरेंट से मिलता है, कई बार अपने किसी टारगेट से मिलता है। जैसे मैं एक बच्चे से मिला, वो बच्चा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, ठीक है। तो उसको एक पुल था एक तरह से आईआईटी में जाने का, कि मैं पहले आईआईटी में जाऊंगा, फिर वहां पे मैं एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करूंगा, देन आई विल गो टू फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड देन आई विल ट्राई टू बिकम एस्ट्रोनॉट। किसी को पुश होता है। बहुत सारे बच्चों के माँ बाप जो है, उनको कई बार बिना इच्छा के, जैसे आपने 3 इडियट्स में देखा भी होगा, वो एक फोटोग्राफर था, फरहान शायद, हाँ फरहान के डैडी चाहते थे कि वो आईआईटीएन बने ताकि उसकी अच्छी जॉब लगे। तो हमारी रियल लाइफ में भी कई तरह के पुश और पुल चलते रहते हैं। हालांकि वो डेफिनेशन फोर्स की इस डेफिनेशन से अलग है। वो पुश और पुल किसी न किसी चीज को अचीव करने के लिए होते हैं या अचीव करवाने के लिए होते हैं, बट अल्टीमेटली देयर मस्ट बी सम पुश और पुल विच इज थ्रोइंग यू टुवर्ड्स आईआईटीज, आपको आईआईटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे ही पुश और पुल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा ये वाला जो पुश और पुल है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो अगले
अगले पॉइंट लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्या मतलब है वेक्टर क्वांटिटी का, थोड़ा सा हम समझते हैं। मान लीजिए एक फोर्स है मेरे पास 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स है मेरे पास 15 न्यूटन। देन F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी। मान लीजिए एक छोटा सा वेक्टर का क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ आपसे। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 20.22, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 3। अगर ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनकी डायरेक्शन जो है किसी ए कैप डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन बी कैप डायरेक्शन में है, ए कैप एंड बी कैप ऑफ सम यूनिट वेक्टर्स, तो आपको बताना है कि F1 प्लस F2 का जो मैग्नीट्यूड है इनमें से कौन नहीं हो सकता। सोचिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए और सोच के बताइए। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बट मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, कोई भी दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा उन दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से छोटा होता है और इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से बड़ा होता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है 5। इसका मतलब रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज डेफिनेटली लेस देन 15 बट लेस देन 25 बट मोर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 25 से तो कम होगा, 5 से ज्यादा होगा। अब आप देख सकते हैं 25 से कम और 5 से ज्यादा वाले सारे आंसर वो तो पॉसिबल हैं। यहाँ पूछा है कौन से पॉसिबल नहीं है, तो 25 से ज्यादा वाला ये पॉसिबल नहीं है, 5 से कम वाला ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑल द रियल नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 5 एंड 25, ऑल द रियल वैल्यूज आर द करेक्ट आंसर, मतलब वो पॉसिबल है। हमसे पूछा जा रहा है जो पॉसिबल नहीं है, तो वेक्टर होने की वजह से एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बन सकता है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। फोर्स का जो यूनिट होता है ना बच्चों, वो होता है न्यूटन। न्यूटन इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल्सो। दिस इज एमकेएस यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट भी होता है डाइन। ओके, सीजीएस यूनिट है ये डाइन। और आप इजीली एक न्यूटन को एक डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 न्यूटन इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁵ डाइन। डाइन का जो मतलब होता है, डाइन बेसिकली सेंटीमीटर इनटू ग्राम डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, तो आप इसको इसमें इजीली कन्वर्ट कर सकते हो आप। 1000 किलोग्राम एंड 100 सेंटीमीटर, और आप जब यहाँ पे 1000 और 100 रखोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट छोटी होती है, एमकेएस यूनिट बड़ी होती है। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। अब फोर्स के कैटेगराइज करते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी फोर्स की हो सकती है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो होती है फंडामेंटल नेचर के ऊपर बेस्ड। तो फंडामेंटली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फंडामेंटल कैटेगराइजेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो बच्चों, ग्रेविटेशन जो है वो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, हम लोग पूरा डिटेल में उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हमें थोड़े बहुत आइडिया इसके बारे में होने चाहिए। दिस इज वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स होता है। जितने भी फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं इन चारों में, सबसे कमजोर फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है,
इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, बड़ी से मतलब बहुत पास भी लगता है और इनफाइनाइट तक लग सकता है किसी भी पार्टिकल का ग्रेविटेशनल फोर्स। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई मीडियम आ भी जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगता है जितना कि लगना चाहिए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस। और दो पॉइंट मासेस के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सारी दुनिया की स्टडीज हम लोग वहीं से कर डालते हैं। G is 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। सच तो ये कि मुझे जनरली वैल्यू याद नहीं रहती, बट बाय चांस अभी ध्यान है तो मैंने लिख दी। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना ये वैल्यू आती है कि नहीं आती, क्योंकि एग्जाम में जनरली दी होती है। मैं वो चीजें याद नहीं रखता, ये भी एक सीखने वाली बात है। मैं उन चीजों पे स्ट्रेस नहीं डालता जो मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा काम आने वाली नहीं है। तो जब जी की वैल्यू एग्जाम में मिलती है तो मैं उसी पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, बट स्टिल एज अ स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, लॉन्ग रेंज फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ये जेई एडवांस के सिलेबस में ऑलरेडी है, ये पूरा चैप्टर आएगा बच्चों। इसीलिए इसीलिए यहां पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एंड दिस इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिनको लगने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो होते हैं जो चार्जेस की वजह से लगते हैं, बिकॉज ऑफ चार्जेस। अच्छा, यहां पर एक चीज और ऐड कर सकते हो, अट्रैक्टिव ओनली। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ये सिर्फ अट्रैक्टिव होते हैं। यहां पर ये दोनों टाइप के होते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ। इसमें जैसे बहुत एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसका एग्जांपल है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिकॉज ऑफ चार्ज लगता है। मैग्नेटिक फोर्स इसका एग्जांपल है। उसके अलावा जैसे फ्रिक्शन, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन वो लगता क्यों है, मॉलिक्यूल्स में जो चार्जेस होते हैं वो आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं तो फ्रिक्शन लगता है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन क्यों लगता है, कैसे लगता है, किधर लगता है और कितना लगता है। देन नॉर्मल रिएक्शन, एंड यू कैन से टेंशन। ये सब कौन से फोर्सेस हैं बच्चों, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। रेंज की बात करी जाए तो इसकी रेंज बहुत छोटी से लेकर बहुत बड़ी तक होती है, क्योंकि एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। तो अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट वाली बात करें तो बहुत बड़ी रेंज है। कॉन्टैक्ट की बात करें तो जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो फोर्सेस लगते हैं ये भी इसीलिए लग पा रहे हैं क्योंकि उनमें चार्ज है और वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाता है। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये मिक्स कैटेगरी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपको सब मिलेगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स लगते हैं। ये लगते हैं बीटा डीके के टाइम पे। बीटा डीके जब होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी क्या होते हैं, किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स इन गामा रेज। तो जब बीटा डीके होता है तब लगता है। मैं आपको इसकी इक्वेशन यहाँ लिखकर बताता हूँ, आप चाहें तो वहां पर भी नोट कर सकते हैं। बीटा डीके की इक्वेशन बड़ी सिंपल होती है। कोई न्यूक्लियस है एक्स, वो चेंज होती है वाई में, और उसकी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, वो कन्वर्ट होता है। बेसिकली एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अ पॉजिट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन बनता है तो एक पार्टिकल और निकलता है न्यूट्रॉन। जस्ट अभी तो जनरल नॉलेज के लिए, बाद में आपको ये सब डिटेल में बताया जाएगा। इनफैक्ट ये 12 के टाइम आएगा एंड में, बट एक जनरल नॉलेज है
कि आखिरकार ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं किस रिएक्शन में। तो इस तरह की रिएक्शन में लगते हैं, ये बीटा डीके है, यहाँ पर बीटा प्लस पार्टिकल निकलता है और न्यूट्रिनो निकलता है और उसके अलावा कुछ एनर्जी निकलती है। दिस इज क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं ये एनर्जी है। कोई दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको रट्टा नहीं मानना है, आपको सिंपल शब्दों में समझना है कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और क्योंकि ये फोर्स वीक होता है इसलिए ये इस जो पार्टिकल है बीटा पार्टिकल को इसको अंदर बांध के नहीं रखता, उसके बजाय ये बाहर फेंक दिया जाता है और ये बहुत तेजी से बाहर आता है पॉजिट्रॉन। इसी तरह की एक रिएक्शन और होती है बीटा माइनस डीके। सो बीटा प्लस एंड बीटा माइनस डीके दोनों में ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। मैं आपको यहाँ इसलिए ये बात बता रहा हूँ, हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि आईआईटी एडवांस एग्जाम में 2 बार आ चुका है ये मैथ्स डी कॉलम में। क्या आ चुका है कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस किस में इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, फिशन, फ्यूजन, फलाना डिकाना, लेकिन उसका जो मैच होना था किसके साथ होना था, सिर्फ बीटा डीके के साथ। तो ये स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट वीकर होते हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स। अब आते हैं लास्ट में, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है बच्चों, जो भी फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगेगा वो शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, और वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है फ्रॉम 0.5 फर्मी टू 10 फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इस रेंज में अगर आपके न्यूक्लियॉन्स हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ऐसा माना जाता है कि अगर डिस्टेंस इससे भी कम हो गई तो फिर वो रिपल्सिव हो जाना चाहिए, अदरवाइज न्यूक्लियस विल बी रप्चर्ड। क्योंकि छोटी होती जा रही सारे न्यूक्लियन पास आ रहे हैं और उसकी डिस्टेंस कम हो रही है, फोर्स जो है वो बढ़े जा रहा है, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस का क्या होगा, वो फ्यूज हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, डेंसिटी विल टेंड टू इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है पर इनफाइनाइट नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब ये अट्रैक्ट, अच्छा दूसरी बात ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, बिकॉज हम जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करता, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्टेस्ट रेंज है इसकी, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। ठीक, अब देखो बच्चों, इनका एक टेंटेटिव आइडिया मैं आपको देता हूं कि ये जो इनका ऑर्डर है ना, ये लगभग किस ऑर्डर का होता होगा। तो अच्छा, कुछ एक दो बातें आपको और बताता हूं। ऐसा कई टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा, HCMM में मिलेगा कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में अगर 1 फर्मी डिस्टेंस पे रखा जाए तो न्यूक्लियर फोर्स का ऑर्डर ये रहेगा। यानी कि अगर 2 न्यूक्लियन, कोई से भी 2 न्यूक्लियन आप किसी डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं तो उनके ऊपर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स जो है सेम आएगा, प्रोवाइडेड वो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में। इसलिए मैंने जानबूझ के 1 फर्मी लिखा है। अगर ये 1 मीटर हो जाए तो न्यूक्लियर फोर्स तो लगेगा ही नहीं। इसका मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रोटॉन प्रोटॉन का जो फोर्स होगा वो हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि तब कौन डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिलहाल डोमिनेटिंग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स है, और न्यूक्लियर फोर्स का जो ऑर्डर है वो ये है। अगर नेट फोर्स का ऑर्डर आपसे पूछा जाए, नेट फोर्स, तो प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनमें नेट फोर्स का ऑर्डर जो है वो इस तरह का होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ नेट फोर्स। क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डेल्टा अमाउंट तो कम करता होगा। इसीलिए नेट फोर्स जब हम लोग चेक करते हैं तो नेट फोर्स थोड़ा सा छोटा आ जाता है 2 प्रोटॉन्स के बीच में, when they are placed at 1 Fermi distance. Fermi means 10⁻⁻15 meters. ठीक है बच्चों, अगर हम इनकी रेंज कंपेयर करें, कभी अगर ये वाला फोर्स 1 न्यूटन है, अगर ये 1 न्यूटन है, ठीक है, तो ये वाला फोर्स होता है 1/100 न्यूटन।
यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर सारे फोर्सेस लग रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियसली न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस फर्मी ऑर्डर की होगी। तो अगर यहाँ 1 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ पे 1/100 लगेगा, और यहाँ पे 1/10⁻7 लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर 1/10⁻38 लगेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे कमजोर कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक कैटेगराइजेशन तो ये हो गया फंडामेंटल के ऊपर बेस। एक कैटेगराइजेशन और है जिसमें हम लोग बात करते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। इफ आप लिख सकते हैं अगला हेडिंग, कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो कैटेगराइजेशन, इसमें अपन लोग दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। एक जिनको हम लोग कहते हैं फील्ड फोर्सेस, और दूसरा जिनको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे कि ग्रेविटी इसमें आता है, ग्रेविटी इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ES मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें क्या है बच्चों, एक होता है फील्ड फोर्स, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे चार्ज। अब चार्ज एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन रिपेल और अट्रैक्ट अदर चार्ज पार्टिकल्स। तो वहां पर एक फील्ड जनरेट हुआ तो वो फील्ड फोर्स बन गया। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड फोर्स है। सिमिलरली अर्थ है। अब देखो बच्चों, अर्थ के ऊपर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा नहीं, मतलब अर्थ से किसी डिस्टेंस h पर है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो लगता है G मास ऑफ अर्थ स्मॉल m डिवाइड बाय r प्लस h होल स्क्वायर। इसमें ये वाले जो टर्म है ना, इस टर्म को आप स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप लोग कहते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है वो m इंटू 9.8 लगता है। तो ये हो गया फील्ड फोर्स, यानी कि आप ये ऑब्जेक्ट अगर दूर रखोगे तब भी लगेगा, और अगर टच करवा दोगे तब भी लगेगा। इसका मतलब इसको लगने के लिए टच होना जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन इसको लगने के लिए कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे टच कर रहा होगा, when it is touching the surface, then only normal reaction will be applicable between them। इसका मतलब एक कैटेगराइजेशन का हो गया कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट के बेसिस पर। एक और कैटेगराइजेशन है जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल में, लेकिन वो हम इसके बाद कैटेगरी है बच्चों, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, जो मैं आपको तब बता पाऊंगा जब मैं आपको सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम बताने के बाद। और फ्री बॉडी डायग्राम में आपको तब बता पाऊंगा जब मैं आपको न्यूटन के एटलीस्ट दो नियम बता पाऊं, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको अपने आप स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला रूल पहले बताया जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का जो पहला नियम है वो बहुत सिंपल है। वो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सिस्टम विल कंटिन्यू टू मूव इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल अनलेस कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल नॉन जीरो फोर्स। आप लोग लिखिए अगला हेडिंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। According to Newton's first law, if an object is moving with constant velocity, it will continue to move until it is compelled by a non-zero force। थोड़ा सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं, इस सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई नॉन जीरो फोर्स नहीं लगाया जाए। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। और लिखिए एक लाइन आगे,
If an object is at rest, it will remain at rest. If it is moving, it will continue to move with constant velocity. If no force is applied on it. थोड़ा सिंपल शब्दों में लिख दिया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. अब आपको मैंने थोड़ा इतिहास बताया था इनर्शिया के बारे में. कौन से साइंटिस्ट ने बताया था हमको? वो बताया था हमको गैलीलियो साहब ने. इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनर्शिया ही एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट होती है. और वो कब रिलेट होती है? जब उसमें अपने मोशन को चेंज ना होने देने की कैपेसिटी हो. जैसे कि कोई भारी ऑब्जेक्ट है, हेवी ऑब्जेक्ट है, तो इजीली मूव नहीं करता क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है. बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग इनर्शिया के सुनते हैं, पढ़ते हैं. जैसे आप लोग अपनी शीट में भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास है और ग्लास के ऊपर यहाँ पर मैंने एक पेपर रखा हुआ है और पेपर के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है और सडनली मैं इसको खींचता हूँ पेपर को, खट. तो बताइए कॉइन किधर जाएगा? तो अगर आप एकदम से खींचते तो कॉइन नीचे जाता है. कारण क्या है? कॉइन के अंदर इनर्शिया है और वो इनर्शिया की वजह से वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं होने देना चाहता. आप सडनली जब इसको खींचते हो तो फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो इसको साथ लेकर के जाए. हम लोग जब बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं और सडनली बस में जब ब्रेक लग जाते हैं तो हम ऐसे जाते हैं, यूं, ऐसे देखिए, यूं जाते हैं. क्यों जाते हैं? बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज अटैच्ड विद द सीट, और सीट और हमारे बीच में फ्रिक्शन है. लेकिन अपर पार्ट विच वॉज एक्चुअली मूविंग विद बस, entire body was moving with bus, but the lower part instantaneously came to rest and the upper part moved like this because कोई उसको रोकने वाला ही नहीं था. हम बैठे, बस एकदम स्टार्ट हो गई, खट. क्यों? क्योंकि लोअर पार्ट तो बस के साथ निकल लिया और अपर पार्ट जो है वो पीछे चला गया. एक आदमी घोड़े पे बैठ के जा रहा है और घोड़े पे बैठ के जा रहा है, अचानक जो है घोड़े ने ब्रेक मार दी, उसको सामने सांप दिख गया. तो बताओ घुड़सवार का क्या होगा? ऐसे रुकेगा ना आगे. तो ये सब जो है ये किससे रिलेटेड है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है. लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. एक्चुअली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या करता है बच्चों? इट डिफाइंस फोर्स. फोर्स को डिफाइन करता है नॉट क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली. फोर्स की प्रॉपर्टी कि फोर्स क्या है. फोर्स है तो एक्सेलेरेशन है, चेंज इन मोशन है. फोर्स नहीं है तो एक्सेलेरेशन नहीं है, चेंज इन मोशन नहीं है. यानी क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है सेकेंड लॉ. तो फर्स्ट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तरह से आप कह सकते हो फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. फर्स्ट लॉ को एक और तरीके से बोला जा सकता है. एक्चुअली न्यूटन के जो नियम है वो केवल इनर्शियल फ्रेम्स में लगते हैं. इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं बच्चों जिसमें, इनर्शियल फ्रेम्स की डेफिनेशन क्या है आप नोट डाउन करिए. इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज फ्रेम्स इन विच एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल विल बी ऑब्जर्व टू बी जीरो इफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज जीरो. अब आप समझने की कोशिश करें. पहली बात तो फ्रेम की बात करें. फ्रेम क्या होता है? कुछ बच्चे सोचते हैं भाई फ्रेम मतलब लोहे का कोई फ्रेम होता होगा. फ्रेम का मतलब होता है बच्चों कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है आप अपने मन में भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं. आपने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा हुआ है. दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो टू डिफाइन पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, टू अंडरस्टैंड एनी मोशन, वी हैव टू मेजर द कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रेफरेंस. और कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है. अब रेफरेंस, जैसे मान लीजिए ये कोई ओ पॉइंट है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, वो किसी मक्खी को देख रहा है, मक्खी उड़ रही है, मक्खी के ऊपर फोर्स जीरो है. तो अगर मक्खी के ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो है और अगर उस ऑब्जर्वर ने देखा कि एक्सेलरेशन भी जीरो है, इसका मतलब कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल. मक्खी के ऊपर फोर्स जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब कौन से फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो? नॉन इनर्शियल. न्यूटन लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम्स ओनली. तो मैंने आपको क्या लिखाया? इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज फ्रेम्स इन विच एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल विल बी ऑब्जर्व टू बी जीरो इफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट पार्टिकल इज जीरो. इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन ऑब्जर्व हो रहा हो? यस.
बहुत आराम से आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक पत्थर जमीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने रिलेटिव मोशन पड़ा हुआ है, अगर मान लो मैं खुद एक्सेलेटेड हूं, पत्थर को देख रहा हूं, तो बताओ मुझे वो पत्थर एक्सेलेटेड नजर आएगा कि नहीं आएगा? सो व्हेन आई एम एक्सेलेटेड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एक्चुअली ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, नेट फोर्स जीरो था, लेकिन मैं एक्सेलेटेड था तो मुझे वो एक्सेलेटेड नजर आया, बिना फोर्स के मुझे एक्सेलेशन नजर आया, इसका मतलब मैं कैसा फ्रेम हूं? नॉन इनर्शियल। तो न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम्स ओनली, याद रखिएगा, नोट लगा के लिख लीजिए, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम्स ओनली, तीनों रूल। अगर किसी फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते, इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है। न्यूटन्स लॉ इनर्शियल फ्रेम को एक और तरह से डिफाइन करता है, वो भी नोट करिए। इफ force experienced by a particle oblique object is zero, then we can find out a set of reference frames in which acceleration of that particle will also be observed to be zero. Those reference frames are called inertial reference frames. If force experienced by a particle is zero, then we can find out a set of reference frames in which acceleration of particle will also be observed to be zero. Those reference frames are called inertial reference frames. मेरा जो पहला स्टेटमेंट था inertial reference frames के बारे में और जो ये वाला स्टेटमेंट है, दोनों सेम स्टेटमेंट है, बस बोलने का जरिया तरीका अलग अलग है। हाँ तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स लॉज के बारे में एंड आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड हाफ ऑफ द लेक्चर बट इन डिफरेंट फॉर्मेट। मैंने उसको बोर्ड पे रिकॉर्ड किया था। देन आई रियलाइज कि बोर्ड पे लाइटिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार इस तरह की रिकॉर्डिंग भी दिखाते हैं, हो सकता है आपको अच्छी लगे। देन विल कंटिन्यू इन दिस ओनली। So in this lecture, we are going to cover the next half of lecture 1 of Newton's law. तो न्यूटन्स लॉ का जो फर्स्ट वाला हाफ था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों कि किस तरह से न्यूटन जो है वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि उनको 3 रूल देने चाहिए। न्यूटन से पहले एरिस्टोटल एंड गैलीलियो अपने विचार व्यक्त कर चुके थे। एरिस्टोटल के विचार जो है थोड़े से गलत थे, मतलब थोड़े से क्या काफ़ी गलत थे। बाद में उनको गैलीलियो ने सही किया और गैलीलियो की जो थॉट थी उसी को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन साहब ने अपने रूल्स दिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट न्यूटन्स सेकेंड लॉ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। I guess many of you have already studied about second law. कहीं ना कहीं सुनाई में आ जाता है, बच्चे कह देते हैं F बराबर एम ए जो है वो सेकेंड लॉ है ना बच्चों? तो F बराबर एम ए तक हम पहुंचे कैसे? क्या F बराबर एम ही सेकेंड लॉ होता है या उससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं? न्यूटन ने वास्तव में क्या कहा? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज of linear momentum, rate of change of linear momentum is equal to force. Rate of change of linear momentum is equal to force. Actually कई जगह ऐसा लिखा मिलता है इट्स प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लेकिन डेफिनेशन में जब फोर्स को डिफाइंड ऐसे किया गया है dp वेक्टर डिवाइड बाय dt, तो हम लोग ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएं, हम लोग सीधा उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। यू नो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? इट इज मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब देखो बच्चों, अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिकल टूल। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं देन यू कैन राइट m dv by dt प्लस v वेक्टर इनटू dm by dt। बट मोस्ट ऑफ द टाइम m कांस्टेंट रहता है जितनी भी चीज़ों को हम डील करते हैं। जिस चैप्टर में जाके m बदलेगा वो होगा सेंटर ऑफ मास, तो वहाँ पर हम फिर m को वेरी कराएंगे। वहां पर फिर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा थ्रस्ट फोर्स वाला,
that will be equal to v relative into dm by dt. But in this chapter m constant रहेगा. So if m is constant, most of the particles में ऐसा आप देखोगे कि constant रहेगा, then your formula will become mass into acceleration. Why? Because acceleration क्या होता है बच्चों? dv वेक्टर डिवाइड बाय dt. राइट. तो हम लोग एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को जो कि आप सबको ऑलरेडी पता है, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं. बॉक्स में बंद करने से क्या है, हाईलाइट हो जाता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है. राइट. हम लोग एक काम करते हैं, इस हेडिंग को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं. न्यूटन सेकेंड लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ फिजिक्स. अच्छे से बंद नहीं होगा, अच्छे से बंद करते हैं इसको. यस, अब वो हाईलाइट हो गया. ओके. सो दिस वाज न्यूटन्स सेकंड लॉ. अब देखो बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ के क्या यूज हैं, है ना. हम लोग ये पूरा चैप्टर आप देखोगे मोस्टली न्यूटन सेकंड लॉ पर ही बेस्ड है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम लोगों को लिख लेने चाहिए रिगार्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ. इंपॉर्टेंट नोट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. इंपॉर्टेंट नोट. पहला नोट देखो बच्चों, इसमें न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में आप ये कह सकते हो कि ये लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को रिलेट करता है फोर्स से. ठीक है. अगर मान लीजिए किसी सिस्टम पे कि लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा हो, यानी कि अगर p वेक्टर कांस्टेंट हो. क्या मतलब निकलता है p वेक्टर कांस्टेंट होने का? इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो उस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? जीरो होगा. नाउ यू थिंक अदर वे. आपने इधर से इधर जाना सीखा, अब इसका उल्टा आके देखो. इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो देन वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव हो गया एक तरह से, लेकिन एक्चुअली सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव नहीं हुआ. सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ सिर्फ जस्टिफाई हुआ है. मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ फोर्स की क्वालिटी के बारे में बताता है और सेकंड लॉ फोर्स की क्वांटिटी के बारे में बताता है. फर्स्ट लॉ क्या था? whenever force experienced by a particle is zero, the particle is going to move with constant velocity. वही चीज यहाँ पर आगे देखो कि जब p कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स जीरो आएगा. तो ये क्या है? मैथमेटिकली आया है. वहां पर हम लोग थ्योरेटिकल बात करते हैं. क्या बात करते हैं कि फोर्स क्या है? फोर्स वो है जो वेलोसिटी को बदल देता है, वो फोर्स होता है, या डिफॉर्म कर देता है. यहाँ पर हम बात क्या करते हैं कि फोर्स कितना होता है, नंबर. ठीक. ए वेक्टर इज द इंस्टेंटेनियस acceleration and f vector is force at the same moment. At the same moment. यानी जिस मोमेंट का ये फोर्स है ना बच्चों, उसी मोमेंट का ये एक्सेलरेशन है. दोनों साइमल्टेनियस होते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने फोर्स लगा दिया अभी और 10 मिनट बाद का एक्सेलरेशन इसमें आ गया. जिस मोमेंट पे फोर्स है उसी मोमेंट का ये एक्सेलरेशन होता है. आप लोग चाहें तो न्यूटन्स लॉ को इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, मतलब सेकंड लॉ को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड की कैप. सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज, हर डायरेक्शन का जो फोर्स होता है वो अपने डायरेक्शन के लीनियर मोमेंटम के चेंज के लिए जिम्मेदार होता है. यानी कि जो x वाला फोर्स है वो सिर्फ x वाला लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा, जो y वाला फोर्स है वो सिर्फ y वाला लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा, जो z वाला फोर्स है वो सिर्फ z वाला लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा.
ऐसा नहीं है कि एक्स वाले फोर्स ने वाई वाला लीनियर मोमेंटम चेंज कर दिया। ठीक, तो इसको हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में लगा सकते हैं, एक्स में अलग लगा सकते हो, वाई में अलग लगा सकते हो, और जेड में अलग आप लगा सकते हो। नाउ चलो एक दो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिखते जाइए, मैं बोल भी रहा हूं, हालांकि मैं लिख भी रहा हूं। इफ speed of the particle is constant, then force on the particle, force experienced by the particle, must be zero। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट इसी से तैयार करूंगा। आप जब तक पूरा स्टेटमेंट लिखिए, मैं आपके लिए दूसरा स्टेटमेंट रेडी करता हूँ। मैं सोच रहा था उसको कॉपी पेस्ट करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, सेम लैंग्वेज है ना। और यहाँ पर मस्ट के बजाय लिखा हुआ है मे बी जीरो। सी, if force acting on a particle is zero, then its linear momentum must be constant। तीसरा स्टेटमेंट हो गया। चौथा स्टेटमेंट, if there is no force in x direction, if there is no force in x direction, then linear momentum of object must be constant। ठीक है बच्चों, ये चार छोटे छोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर देने हैं, और हम एक एक को डिस्कस भी करते चलते हैं। आप अपने आंसर्स भी वेरीफाई करें। इफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल मस्ट बी जीरो। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो पार्टिकल पे फोर्स जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे घूमता है, when a particle is moving on a circular path, its speed remains constant, but still there is a force which acts towards the center। जब पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा होता है तो उसकी स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार बदलती रहती है बच्चों, और इसलिए उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी ज़रूरत होती है, जो कभी टेंशन देता है, कभी फ्रिक्शन देता है, कभी ग्रेविटी देता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक देता है, कभी कोई देता है, कभी कोई देता है, पर देता रहता है। तो a force is required which acts towards the center and changes the velocity although speed remains constant। इसलिए ए ऑप्शन का जो है वो लॉजिक ये है। बी वाला ट्रू है, क्योंकि हमने थोड़े ना बोला है कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ पे नहीं चल सकता। किसी कर्व पाथ पे चलेगा
तो फॉल्स हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा एक ही डायरेक्शन में बिना डायरेक्शन बदले तो फिर फोर्स जीरो आ जाएगा। If force acting on a particle is zero, then its linear momentum must be constant. Yes, this is true. Okay. If there is no force in x direction, then linear momentum of the object must be constant. This is false. x डायरेक्शन में फोर्स अगर जीरो है, हमें क्या पता y डायरेक्शन में क्या है, हमें क्या पता z डायरेक्शन में क्या है। हो सकता है y और z डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो तो हो सकता है उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा हो, वी डोंट नो। ठीक है, इसका मतलब किसी दूसरी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम का चेंज जो है वो संभव है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ, पूरा ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सेकेंड लॉ पे बेस्ड है एंड वी डिस्कस फर्दर अबाउट सेकेंड लॉ इन कमिंग डेज। अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड लॉ की, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको सबको पता है, इसको एक नाम से जाना जाता है खास। क्या नाम है बच्चों? एक्शन रिएक्शन। क्या हर एक्शन की इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है? तो आपका जवाब होता है यस, होती है। इसको अच्छा बनाइए। चलो छोड़ो, अंडरलाइन नहीं करते, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये अगला हेडिंग है। चलिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसके बारे में लिखिए। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन की इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। और याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस के लिए लागू होता है। वैसे आपको बता दूं, ऑल न्यूटन्स लॉज आर वैलिड ओनली फॉर रियल फोर्सेस। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अर्थात अगर आपके पास दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, और पार्टिकल 1 ने मान लीजिए पार्टिकल 2 पे कोई फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स 1 ने 2 पे लगाया उतना ही फोर्स 2 भी 1 पे लगाएगा, पर उल्टी डायरेक्शन में। बोथ दी फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन वैसे अपोजिट, है ना। अब देखो, इसके अंदर कुछ खास बातें हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ इतना इजी नहीं है, कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हम लिखते हैं यहाँ पे एक एक करके। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते वो रियल मतलब वो जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो। पहला रूल, एक्शन एंड रिएक्शन appears simultaneously. एक्शन एंड रिएक्शन appears simultaneously। बच्चों एक साथ आते हैं, साइमल्टेनियस। ऐसा नहीं कि अभी एक्शन हो गया फिर 2 सेकंड बाद रिएक्शन हो रहा है ना। तो साइमल्टेनियसली एक साथ वो आते हैं। दूसरा, एक्शन रिएक्शन पेयर्स आर ऑलवेज ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अर्थात एक्शन और रिएक्शन के जो पेयर्स हैं वो कभी एक ऑब्जेक्ट पे लगते, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। एक ए बॉडी पे लगा है तो दूसरा फिर ए पे नहीं लगेगा, वो बी पे लगेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर्स ऑलवेज हैव सेम नेचर, ऑलवेज हैव सेम नेचर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रिएक्शन होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होती है, नॉर्मल की रिएक्शन नॉर्मल ही होती है, फ्रिक्शन की रिएक्शन फ्रिक्शन ही होती है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है और मदर अर्थ, और इसके ऊपर एक ब्लॉक बना रहा हूँ छोटा सा। ब्लॉक अच्छा बनाना चाहिए आप।
ठीक है, ब्लॉक सही नहीं बनता तो मज़ा नहीं आता। बोर्ड पे तो बहुत कंफर्टेबली ये सब डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं, वी आर वेरी मच एक्सपीरियंस। चलो कोई बात नहीं, गंदा डायग्राम बन गया लेकिन ब्लॉक तो दिख रहा है यार। दिस ब्लॉक इज टचिंग हियर, मास ऑफ द ब्लॉक इज एम। ठीक है, आप लोगों से कोई अगर ये पूछे कि वो जो ये तो अर्थ हो गई बच्चों, शो ऑल द फोर्सेस ऑन एम एंड इंडिकेट एक्शन रिएक्शन पेयर्स। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि सारे के सारे फोर्सेस जो हैं वो दिखाएंगे। उसके बाद आप इंडिकेट करेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर कौन कौन से हैं, किसका रिएक्शन कहाँ है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करिए जब तक मैं आगे आपके लिए दूसरे टॉपिक की तैयारी कर लेता हूँ। पहले आप अच्छे से क्वेश्चन लिख लो, आपको मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, है ना। मैं चाह रहा था कि नीचे कुछ लिख लूँ लेकिन आपके सामने डायग्राम होना जरूरी है, सो यू कैन वेट। आप आराम से लिखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1.5 मिनट, 90 seconds you have to show all the forces, okay, and on small m, and then you indicate action reaction pair, कौन किसका रिएक्शन है वो अपने को बताना है। तो देखो बच्चों, जब वो बॉडी मैं ऊपर ले जाऊंगा, है ना, और उस बॉडी को ऊपर ले जाने का मतलब है खाली मैं उसको ऊपर ले जाके आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअली बॉडी वहीं पर है। तो हम लोग उस पर दिखाने वाले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो आई होप आप लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया होगा इसके ऊपर, है ना। और नीचे की तरफ लग रहा होगा बच्चों एम जी, इस बॉडी पे नीचे की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और इसके ऊपर लग रहा होगा एम जी। अभी हम लोग इन सभी फोर्सेस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा ये टेंशन क्या होता है, किधर लगता है, दैट विल डिस्कस इन डिटेल। बट इतना अपन जानते हैं कि जब भी हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं तो अर्थ हमारे ऊपर क्या लगाता है, नॉर्मल एक्शन फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। तो अर्थ हमारे ऊपर नॉर्मल लगाता है तो हम भी अर्थ के ऊपर नॉर्मल लगाते हैं, एक्शन रिएक्शन। लेकिन अर्थ हमारे ऊपर एम भी लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, मैंने आपसे पूछा था शो ऑल द फोर्सेस, मेरे ख्याल सारे फोर्सेस हमने बता दिए। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, इसका जो रिएक्शन है वो ये है। बहुत से बच्चे एम को नॉर्मल का रिएक्शन बताते हैं या उल्टा सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये ब्लॉक हमने रखा था, इस पे नीचे एम लग रहा था, क्योंकि एम लग रहा था इसलिए नॉर्मल आया, इसलिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल ही होगा, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो फिर एम का रिएक्शन कहाँ पर है, एम का जो रिएक्शन है ना बच्चों, वो अर्थ के सेंटर पे है। इसका मतलब उस एम का रिएक्शन जो है अर्थ के सेंटर पे होता है। हर फोर्स का जो रिएक्शन होता है बिल्कुल उसके जैसा होता है। जैसे राइट नाउ व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, यू आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मून, ड्यू टू सन, ड्यू टू ऑल दिस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो क्या हम भी उन पे फोर्स लगा रहे होंगे? यस, हम भी लगा रहे होंगे।
हमारे ऊपर वो जितना फोर्स लगा रहा होगा एग्जैक्टली हम भी लगा रहे हैं। क्या हम अर्थ पे खड़े होते हैं तो अर्थ पे भी हम फोर्स लगाते हैं सेंटर पे? यस। तो ये होता है बच्चों एक्शन रिएक्शन पेयर। और एक चीज, हर चीज का, हर फोर्स का जो एक्शन होता है वो फोर्स ही होता है, ऐसा नहीं कि फोर्स का एक्शन कुछ और चीज हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी दौड़ रहा है, तो दौड़ने का एक्शन जो है वो दौड़ना नहीं होता। आप दौड़ रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी दुनिया दौड़ रही है, ये अलग बात है कि रिलेटिव में आपको फील होती है दुनिया पीछे चलती हुई, लेकिन फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होगा। आपने अगर किसी चीज पे एफ फोर्स लगाया तो वो भी आप पे एफ फोर्स लगाएगी ही लगाएगी। दिस इज अ फंडामेंटल रूल। आपने किसी भी फोर्स लगाया तो ऐसा नहीं है कि फोर्स का जवाब जो है आपको वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट से मिलेगा, फोर्स का जवाब आपको फोर्स से ही मिलेगा। अब क्योंकि हम लोग डिफाइन कर चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो हम इसको यूज करेंगे बच्चों। और यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक एक करके फोर्स की बात करेंगे कि कौन से टाइप के फोर्सेस हमें इस चैप्टर में काम लेने हैं। तो आपको पता है 4 फंडामेंटल टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक का नाम था ग्रेविटेशनल, एक का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और एक का नाम था वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस चैप्टर में हमारा जो पाला पड़ता है वो उन फोर्सेस से पड़ता है जैसे कि जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, और उसके अलावा पड़ता है ग्रेविटी से। 2 फोर्सेस से हमारा पाला पड़ता है। नॉर्मल 3 से, नॉर्मल, टेंशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब नॉर्मल, टेंशन और ग्रेविटेशन फोर्स, ये 3 से पाला पड़ता है। उसके अलावा सूडो फोर्स से ही पाला पड़ता है, जिसमें मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अगला हेडिंग है, हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को पहले पढ़ेंगे, बॉडी पे किधर लगता है नॉर्मल रिएक्शन उसको समझेंगे। फिर हम लोग टेंशन की बात करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, लेकिन फ्रिक्शन अपने आप में एक पूरा चैप्टर है जो आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग आपको सिर्फ आइडिया देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, वेन एवर टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस are facing, pressing, not facing, whenever two contact surfaces are pressing each other, normal force acts between them. Normal force acts between them. देखो बच्चों क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी होती है, आप सब जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक बॉन्ड से बने होते हैं, ठीक है। अगर उन बॉन्ड्स के बीच की दूरी को कम किया जाता है, जैसे मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं और हम लोग उनके बीच की दूरी को कम करते हैं, पास में ले आते हैं, तो पास में लाते हैं उन मॉलिक्यूल्स को, तो वो जो बॉन्ड है ना उसकी लेंथ कम होती है और इनके बीच का रिपल्शन बढ़ता है, और इसलिए इनमें रिपल्सिव फोर्स लगता है। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर आप पास के बजाय दूर लेकर के जाते हैं तो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ऐसा लगता है जैसे कि बॉन्ड्स के बीच में कोई वर्चुअल स्प्रिंग हो। सो इट इज जस्ट लाइक स्प्रिंग। आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग को जब दबाते हैं तो क्या करता है, अपोज करता है दबने को, और जब खींचते हैं तो उसको भी अपोज करता है। दिस ऑल इज दिस इज डिसाइडेड बाय इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस डायग्राम। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना होगा, ये खास तौर की एनर्जी होती है जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ होता है ऐसा होता है, और एक ऐसी डिस्टेंस होती है जिसको हम बोलते हैं मीन डिस्टेंस। दिस इज मीन डिस्टेंस। उस डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। यदि हमने उससे डिस्टेंस कम करी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो उसका विरोध होता है, उसका अपोजिशन होता है, और मॉलिक्यूल दूर जाने की कोशिश करते हैं। यदि हमने मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाया तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर जाने का भी विरोध करते हैं और स्प्रिंग की तरह एक दूसरे को खींचते हैं।
अब देखो बच्चों, इसमें क्या है कि नॉर्मल एक्शन जो है उसकी खास बातें हैं। पहली, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। दूसरा, फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स एंड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, नॉर्मल रिएक्शन पासेस थ्रू इट्स सेंटर और एक्सेस। अगर स्फेयर वाला केस है तो सेंटर से गुजरेगा, और अगर सिलेंडर वाला केस है ना बच्चों, तो एक्सिस से गुजरेगा। यहां पर एक चीज लिख लेते हैं, कॉन्टेक्ट सरफेस इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कभी नेगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू जीरो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स माइनस में नहीं हो सकता कभी। तो फिर कौन सा फोर्स माइनस में हो सकता है? एक्चुअली कोई भी फोर्स माइनस में हो सकता है। माइनस और प्लस का मतलब खाली डायरेक्शन होता है फोर्स में। तो इट इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू जीरो। एक्शन रिएक्शन पेयर की फॉर्म में आता है, और हम लोग कुछ एक नॉर्मल रिएक्शन बना करके देखते हैं, और उससे अपने को आइडिया लगेगा कि बनाने कैसे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस के ऊपर इस तरह से एक स्फेयर रखा हुआ है। स्फेयर बनाना चाह रहा था, बट वो इलिप्स बन गया। स्फेयर तो बन गया, सरफेस नीचे आ गई, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं। हम्म। सो ये हमारी सरफेस है जिसके ऊपर वो रखा हुआ है। कोई बात नहीं, इसको पेन से फिल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक सेकेंड। यस, अब यहाँ पर मैं एक रॉड और बना रहा हूँ। इसके साथ एक रॉड अटैच्ड है ऐसे। जो रॉड है वो जमीन पे ऐसे टच कर रही है, like this। आपको दिख रहा है इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा बन गया तो इसको मिटा देते हैं। यस, इधर पे मिटा देते हैं। सो दिस इज द रॉड, ठीक है। आपको कुछ नहीं बता रखा, फ्रिक्शन एक्शन आपको चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ऑल नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। यू हैव टू ड्रॉ ऑल नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम्म, एक स्फीयर है, उसके बाजू में एक और स्फीयर है। ये दोनों यहाँ टच करते हैं, और दोनों स्फीयर्स
एक बकेट में रखे हैं। आई विश में बोर्ड पे पड़ा होता। अभी वाला बोर्ड नहीं, क्लासरूम में बोर्ड होता है। तो मज़ा अलग ही होता। एंड आई प्रे टू गॉड, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि बहुत जल्दी ये कोरोना वायरस जो है ये हमारे जीवन से भाग जाए और हम लोग वैसे ही पढ़ें जिस तरह से सारे बच्चे पढ़ करके गए हैं, जिस तरह से आपके पवन भैया पढ़ करके गए हैं। पवन गोयल को आप जानते होंगे। ये नावेडेज इज इन MIT, और MIT के अंदर वो पढ़ रहे हैं। पहले वो IIT गए, secured fourth rank as well as INPHO gold medal, and because of INPHO gold medal he was able to get direct admission। IPHO gold medal, not INPHO में तो था ही, IPHO gold medal, he was able to get direct admission into MIT। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को भी इस तरह के मौके मिलें। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। आई रियली फील लकी, क्योंकि हम लोगों ने जैसे पढ़ते थे तो बहुत बहसबाजी होती थी, बहुत सीखने को उनको भी मिलता था और मुझे भी नई नए एस्पेक्ट पता चलते थे। कई बार तो कुछ ऐसी चीज़ें डिराइव करने की जिद पे आ जाते थे हम सब मिलके, जो जनरली IIT सिलेबस में होती नहीं थी, ओलम्पियाड्स में होती है। तो आई लर्न मेनी थिंग्स विच यूजुअली इज नॉट इन JEE syllabus because of Pawan and student like him। Okay, anyways, so ये यहाँ टच कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या स्फीयर थोड़ा दूर बन गया था ना, इसलिए मैंने इसको टच करवा दिया। आपको इन सब में नॉर्मल फोर्सेस बताने, तो सबसे पहले बच्चों में यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगेगा इस तरह से। तो उस बॉडी पे बताओगे तो इधर लगेगा, और इस बॉडी पे बताओगे तो इस बॉडी पे इधर लगेगा, लाइक दिस। ये नॉर्मल मान लीजिए N1 है, ये भी N1 है। एक नॉर्मल जमीन से भी लगेगा। जमीन से जो नॉर्मल लगेगा वो ऐसा लगेगा, मान लेते हैं कि जो जमीन से नॉर्मल लग रहा है दैट नॉर्मल इज N2, तो जमीन पे भी N2 लगेगा। ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ भी लगेगा। अब देखो वो मैंने एक पॉइंट लिखा था, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो जैसे ये जो रॉड का कॉर्नर है इसका नॉर्मल हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जमीन का तो समझ में आता है। तो जमीन यानी अर्थ जो उस पर नॉर्मल लगाएगी वो ऐसे लगाएगी ऊपर की तरफ। मान लेते हैं उस नॉर्मल का नाम जो है वो N3 है, तो वो भी अर्थ पे नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएगा, दैट विल बी N3। ओके, तीनों नॉर्मल ऐसे बन गए। हमेशा ध्यान रखें ये कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा दीवार से N1, तो दीवार पे भी लगेगा N1। यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा N2, तो यहाँ पर भी लगेगा N2। ठीक है, डायग्राम में ऐसा ऐसा लग नहीं रहा था टच कर रहा है, पर ये टच कर रहा है। तो एक नॉर्मल यहाँ से लगेगा N3, तो यहाँ पर भी नॉर्मल लगेगा N3। मैंने आपको बताया था जब भी दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस करेंगे इसका मतलब एक दूसरे को दबाएंगे, तो उनकी जो सरफेस है वो सरफेस एक दूसरे को दूर की तरफ धक्का मारेगी। बिकॉज यहाँ जो मोलिक्यूल्स हैं, अगर मान लो मैंने ऐसे धक्का मारा तो यहाँ के मोलिक्यूल जो है पिचकेंगे। मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम में बताया था कि मोलिक्यूल्स के बीच की अगर डिस्टेंस कम होती है तो वो एक दूसरे को दूर की तरफ धक्का मारते हैं। तो जब ये पिचकेंगे तो यहाँ पर एक नॉर्मल एक्शन यूँ लगेगा और एक नॉर्मल एक्शन यूँ लगेगा, लाइक दिस। अब देखो एक तो यहाँ लग गया, ये जमीन से, जमीन मतलब बॉक्स के नीचे वाले सरफेस से, एक दीवार से लग गया। एक नॉर्मल बाकी है इन दोनों के बीच में, लेकिन इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N3 N4 मान लेते हैं, वो नॉर्मल दोनों के सेंटर से गुजरेगा। मैंने आपको एक नोट लिखाया था
whenever you have spherical or cylindrical objects, normal reaction passes through their center. स्फीयर वाले केस में तो सेंटर होगा, और सिलेंडर वाले केस में क्या होगा बच्चों, वो एक्सिस होगा। मान लीजिए कि ये जो वेज है, ये वेज ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऐसे लग रहा होगा, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऐसे लग रहा होगा। जमीन से जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऐसे लग रहा होगा, और यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो ऐसे लग रहा होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट नॉर्मल। वंस यू कैलकुलेटेड नॉर्मल, नॉर्मल के कंपोनेंट किए जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उनमें हम लोग न्यूटन्स लॉ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कुछ एक एग्जांपल और करते हैं बच्चों। एडिंग सम मोर पेजेस। चलिए ब्लॉक पे ब्लॉक रख के देखते हैं उनमें नॉर्मल कैसे लगेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे उसमें भी गलती कर देते हैं। हम लोग 2-3 ब्लॉक बनाते हैं। दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है ग्राउंड पे रखा हुआ है, M1। और M1 के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, M2। और M2 के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, M3। ड्रॉ ऑल नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। जितने भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस हो सब ड्रॉ करिए। ये करने के बाद फिर हम लोग ये करेंगे। पहले आप जब तक उसको ट्राई करो। ये M1 और ये M2 बच्चों। तो दोनों के नॉर्मल रिएक्शंस आप बनाइए। मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला तो हो गया होगा। तो जब आप M3 ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे तो देयर विल बी ओनली वन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, that is your N3, and that N3 is applied by M2. Then comes your M2 body। M2 वाली बॉडी के ऊपर, अच्छा N3 उस पे लगा है तो N3 इस पे भी लगेगा। दिस N3 is force applied by M2 on M3। Similarly N2 भी लगेगा यहाँ पे। N2 is force applied by M1 on M2। और लास्ट में देखा जाए तो इसके ऊपर वो N2 का रिएक्शन लगेगा, और एक N1 भी लगेगा ग्राउंड से। दिस N1 इज अप्लाइड ऑन ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर फोर्स लग रहा होगा N1। ये तो हो गए बच्चों नॉर्मल फोर्सेस। आगे हम लोग अगले लेक्चर में फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम ये सीखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। उसका मतलब होता है कि आप सारे फोर्सेस उस बॉडी के दिखा दो, और सारे जगह से उसको अलग कर दो, बहुत तैयार हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। सेकेंड वाले केस में अगर आप नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे, आई होप आपने अभी तक बना लिया होगा। नहीं बनाया तो वीडियो को आप 1 मिनट तक के लिए रोकें और फिर बनाएं, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखें।
एक नॉर्मल लेगा दीवार से, एक नॉर्मल लेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, एक नॉर्मल लगेगा इस वाली बॉडी के ऊपर जो जमीन पे है, उस पे उधर से नॉर्मल लगेगा N2, और एक नॉर्मल लग रहा होगा बच्चों यहाँ पे ग्राउंड से N3। एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर ये जो बॉडी है कौन सी वाली बॉडी, M2, ये जो सेकंड नंबर वाली बॉडी है सर इसको रोक के किसने रखा हुआ है? तो मैंने उसको जवाब दिया बेटा इसको रोक के नहीं रखा, 2 दिन बाद आप इसका एक्सेलेरेशन निकालना सीख जाओगे। यानी कि आने वाले समय में ये जो हम सीख रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग न्यूटन्स लॉ लगा पाएंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, केवल फोर्सेस बता रहे हैं, कल हम क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे अगर वो होते होते हैं, और अगर वो बैलेंस नहीं होते तो अनबैलेंस फोर्सेस क्या क्रिएट कराते हैं बच्चों, एक्सेलेरेशन। जब भी फोर्सेस अनबैलेंस होंगे तो एक्सेलेरेशन उनके बीच में क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर आज कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेंशन फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम, सिस्टम, और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टिल देन गुड लक, एंजॉय। आप अपने डीपीपीस को करते रहिए। जहां पर आपका पिछला डीपीपी छूटा था, नंबरिंग आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 13 या 14 होगा, जो भी नंबरिंग हो उसका अगला डीपीपी आप ट्राई कर लें। विल डिस्कस दैट डीपीपी इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। ओके, जो मैंने पढ़ाया फिलहाल इसको रिवाइज करिए, और पुराना जो असाइनमेंट है उसको आप कंप्लीट करिए, और कोई भी लैगिंग हो तो डाउट क्लास में उस डाउट को जरूर क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। चलो बच्चों, गुड लक।